वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को कंटेनर बनाते हुए वर्टिकल गार्डन बनाए। जो वर्टिकल गार्डन है इंटरनल टेम्परेचर भी कम करता है। प्लांट वो लगाने हैं जो लोकल हो, ओके। जो ड्यूरेबल है, फ्रूट नहीं आते प्लांट्स पर। तो उसका एक सिंपल टेक्निक है कि आप उसके प्लांट की जड़ में हिंग दबा दीजिए। लोग खुशी में ट्री गार्ड लगा देते हैं। प्लांट 20 साल का हो गया पर ट्री गार्ड उसको जकड़ा हुआ है, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। Can someone create 550 jungles in 4 years? Sounds impossible, right? But it's true. And the person is neither a full-time environment activist nor a forester. He is an Indian Revenue Services officer, a taxman in common parlance. He has planted 7.5 lakh trees in 4 years or 1,460 days, which means he planted 514 saplings every day during the past 4 years. Really astounding feat considering he's into a 9 to 5 job, which often stretches into late evenings, if not midnight. Hey there, green enthusiasts. I am Bhakti Kothari, and today we're diving into a fascinating conversation with none other than Rohit Mehra, the IRS officer from the 2004 batch who has earned the title of the Green Man of India. Rohit's work is nothing short of phenomenal. Imagine transforming urban landscapes with over 550 vertical gardens and planting nearly 7.50 lakh plants in just 4 years. His green revolution has turned concrete jungles into lush green oases, making our cities more beautiful and environmentally friendly. But that's not all. Rohit has spearheaded the seed ball movement in India, creating and distributing close to 20 lakh seed balls in the past 3 years. Talk about making a mark. He holds a record for this incredible achievement. His passion for reforestation doesn't stop there. Rohit has also created over 40 micro jungles using the ancient principles of Vriksha Ayurveda and the modern Miyawaki method. These urban forests are not just patches of greenery, but vital lungs for our cities, providing crucial green cover and biodiversity. And if you think that's impressive, wait until you hear about his literary contributions. Rohit has authored several books on environmental conservation, including the must-read Gift Lungs to Future Generations, a comprehensive guide to creating urban forests. So get ready to be inspired as we welcome Rohit Mehra and delve into his incredible journey, groundbreaking initiatives, and visionary plans for a greener, healthier future. A very hearty welcome to our channel, sir. We're very obliged कि आप आज यहाँ पे हमारे साथ आए हैं। हमें आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपकी हॉबीज से रिलेटेड। मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, हमने वर्टिकल गार्डन्स के बारे में सुना है, आप ही से सुना है, देखा भी है मैंने तो लाइव खुद से। क्या इंस्पायर किया आपको वर्टिकल गार्डन्स बनाने का? देखिए, ये स्टार्ट हुआ आज से 8-9 साल पहले। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मेरा बेटा मुझे कहता है कि पापा हमें पोल्यूशन हॉलीडेज हो गई हैं। तो मुझे ये लगा कि यदि एज अ फादर, एज अ सिटीजन, एज अ ब्यूरोक्रेट आई कैन नॉट गिव हेल्थ, प्योर एयर टू माई चाइल्ड, देन आई एम अ फेलियर एज ए फादर। ओके। तो मुझे लगा कि प्लास्टिक और जो ग्रीन है तो दे आर ऑपोजिट, व्हाई नॉट टू converge them and do something. Plastic waste is very difficult to be discarded. तो हमने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को कंटेनर बनाते हुए वर्टिकल गार्डन बनाए। ओके, राइट। तो जैसे कि ये आइडिया आपको कैसे मिला कि कैसे प्लास्टिक बॉटल्स को काट के उस चीज को बनाना? देखो, सिंगापुर वगैरह में जो वर्टिकल गार्डन है पोर्ट्स पे बनते हैं, मैं एक बार वहां गया था। पर हमने ये देखा कि ये जो ऑप्शन है वेस्ट प्लास्टिक का, ये बहुत चीप, पहले बोतल 40 पैसे की मिल जाते थे। तो हमने इसको यूज करना शुरू किया और इट वाज वेरी ड्यूरेबल, सेफ एंड इवन एस्थेटिक वैल्यूज। राइट, ट्रू सर। तो जैसे कि हम सबको पता है कि यू हैव अर्न द टाइटल ऑफ द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, मतलब सिर्फ पंजाब का नहीं, सिर्फ दिल्ली का नहीं, इंडिया के ग्रीन मैन। कैसे आपको ये टाइटल मिला और ये टाइटल आपके लिए क्या वैल्यू रखता है? मैम, मुझे खैर whatever I do for my own happiness. What people think, say or opine is not my, मेरा इतना कंसर्न नहीं होता। Okay. लोगों ने कहना शुरू कर दिया जब हमने ये करना शुरू किया, ठीक है, इट्स
आई नो आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, माई हैप्पीनेस एंड फॉर द प्लेनेट। तो मैं इससे ऊपर नहीं सोचता कि क्या टाइटल है या क्या है। राइट सर। एंड कमिंग बैक टू वर्टिकल गार्डनिंग, व्हाट इज दैट वन फैक्ट जो आपको लगता है कि सबको नहीं पता होगा अबाउट वर्टिकल गार्डनिंग, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जो वर्टिकल गार्डन है इंटरनल टेम्परेचर भी कम करता है। अच्छा, ओके। आइडियल कंडीशंस में 4.5 से 6 डिग्री तक कम करता है। आपका उतना ही एसी का यूज कम हो जाता है, उतना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी। तो ये फैक्टर एक बहुत बड़े फैक्टर है जो बहुत लोगों को नहीं पता। राइट सर, थोड़ा सा हमें आप प्रोसेस लेके जाएंगे कैसे वर्टिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं? मतलब जैसे बॉटल्स कट करी, उसमें मिट्टी डाली, कैसे उसको सस्टेन किया जाता है, कैसे उसको, मतलब उसका सर्वाइवल कैसे होता है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो प्लांट वो लगाने हैं जो लोकल हो, ओके, जो ड्यूरेबल हो। ओके, जैसे अजवैन बहुत अच्छा है, टिकुनिया बेल बहुत अच्छी है। ऐसे प्लांट लगाओ जो मोर देन एस्थेटिक दे आर ड्यूरेबल, तो वो उसका सर्वाइवल बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे संगोनियम है, जेड प्लांट है, एवरी स्टडी प्लांट, हर एक तरह की सिचुएशन में गिलोई लगा दी आपने। तो हम ऐसे प्लांट सेलेक्ट करते हैं जो सालों साल चले। तो डेट इज वन सीक्रेट कि आप ऐसे प्लांट लगाओ जो चलने वाले हो, इन कंपैरिजन टू वो प्लांट जो आप सिर्फ ब्यूटी के लिए, जैसे फ्लावर लगा दिए वो 2 महीने रहेंगे। तो हम वो प्लांट लगाते हैं जो पेरिनियल रहे, सारा साल रहे, एवरग्रीन रहे, स्टडी हो, धूप कम ज्यादा हो जाए, बारिश कम ज्यादा हो जाए, फिर भी वो सरवाइव करे। राइट। एंड सर, वृक्षायुर्वेद और मियावाकी टेक्निक्स, ये 2 चीजें जिसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन थोड़ा ज्यादा है। तो एक तो आप प्लीज हमें, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, और प्लस ये दोनों टेक्निक्स कैसे एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम की तरफ हमारी कंट्री को लेके जा सकती है? जी, देखिए, हमारे स्क्रिप्चर है वृक्ष आयुर्वेदा, जो कहा जाता है 2nd BC में सुरपाल ने लिखा। उन्होंने इंडियन प्लांट्स की जो एक तरह से साइंस तैयार की, राइट। और ये मच मोर कंप्रिहेंसिव, ब्रॉडर और काफी डिटेल्ड है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज वातावरण, राइट। वृक्ष आयुर्वेद में जैसा बोला गया, वातावरण मीन्स वात आवरण, आपके आसपास का जो हवा वायु है उसको वातावरण कहते हैं। यू कैन नॉट सस्टेन योरसेल्फ इवन फॉर ए सेकेंड विदाउट द एनवायरमेंट। और ये प्राइमरीली बना है 5 एलिमेंट से, हवा, पानी, फायर, स्पेस और अर्थ की एलिमेंट। अभी और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो मेरे अंदर है वही बाहर है। मेरे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। मेरे अंदर पानी है जो 71% के आसपास है। एग्जैक्टली सेम पानी ही, सेम क्वांटिटी 70 to 71% प्लेनेट में है। मेरे अंदर हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, एग्जैक्टली सेम है बाहर। मेरे अंदर फायर है, मेटाबॉलिक फायर है, तभी मैं फूड प्रोसेस कर पाता हूँ, एग्जैक्टली सेम बाहर है। अभी यदि इनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मान लीजिए मुझे पानी ज्यादा हो गया तो मैं वॉमिटिंग करना शुरू हो जाएगा, तो ये में होगा डिजीज। और यदि प्लेनेट में ज्यादा पानी हो गया तो बाढ़ आ जाएगी। मेरे अंदर ज्यादा फायर एलिमेंट हो गया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बाहर गर्मी ज्यादा हो गई, ग्लोबल वार्मिंग। मेरे अंदर हवा ज्यादा हो गई, एसिडिटी। बाहर आएगी, स्टॉर्म। सो वी आर नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेनेट। तो जो बाहर है वही अंदर है। यदि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें बाहर एनवायरनमेंट हेल्दी रखना पड़ेगा। बाहर एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तभी हम इंटरनल एलिमेंट हमारा हेल्दी रहेगा। तो वृक्ष आयुर्वेदा इज ए कंप्लीट साइंस ऑफ प्लांटेशन। अभी मियावाकी इज ए रिसेंट टेक्निक, और ये ऑलरेडी वृक्ष आयुर्वेदा में वो सारा थीसिस है जो कि वृक्ष जो मियावाकी में है। मियावाकी में क्या है, लोकल प्लांट लगाओ, डेंस फॉरेस्ट्री करो, और ऐसे प्लांट लगाओ जो एक दूसरे के पूरक है, कंप्लीमेंट्री है। एग्जैक्टली सेम वृक्ष आयुर्वेदा है। दे से बिफोर प्लांटिंग एनी ट्री आपको एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस एलिमेंट को देखना है, डायरेक्शन ऑफ द सन देखना है, और डेंस प्लांटेशन भी बताया गया है। त्रिवेणी है एक ही गड्ढे में। हमारे पूर्वज क्या, हमारे आजकल भी आपने त्रिवेणी चौक देखा होगा, एक ही गड्ढे में नीम,
पीपल और बरगद लगाते हैं। हरी शंकरी में एक ही गड्ढे में हम नीम और सॉरी पलास, पीपल और बरगद लगाते हैं। Okay. पंचवटी में हम आंवला, अशोका, बिल, पीपल और बरगद लगाते हैं। अच्छा। तो ये हमारे संस्कारों में, इंडियन इन्वायरमेंटल एथोस में ऑलरेडी है। जी। मियावाकी क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गई, वैसे भी इंडिया में कोई बाहरली चीज है तो बहुत पॉपुलर हो रही थी, ये ऑलरेडी वृक्ष आयुर्वेद का पार्ट है। जी जी। तो जैसे कि मियावाकी टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें बहुत क्लोजली प्लांट्स को सिचुएट किया जाता है। अब जैसे आजकल के टाइम पे देखा जाए तो हर कोई प्लांटेशन कर रहा है, कोई 1 लाख सैपलिंग्स लगा रहा है, कोई 1 करोड़ सैपलिंग्स लगा रहा है, लेकिन वो क्या रहा है ना कि वो जो फॉरेस्ट बन रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा ट्रेडिशनल वे है और मियावाकी टेक्निक बहुत डिफरेंट है। तो क्या आपको लगता है इट्स हाई टाइम कि अब लोगों को एक तो मियावाकी टेक्निक अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो किस तरह से वो इस तरफ बढ़े आगे? जी, देखिए मुझे लगता है कि जैसे जो वृक्ष आयुर्वेद टेक्निक है, ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। हमने इसके बेसिस पर हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट बना दिए जी। इसमें क्या है कि जैसे अभी लोग क्या करते हैं, प्लांट्स लगा देते हैं, 1 लाख प्लांट, 2 लाख प्लांट, पर उनको सरवाइव कराना बड़ा मुश्किल होता है। आपको डिफरेंस करना पड़ेगा प्लांटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री और फॉरेस्टेशन। जी। जो प्लांटेशन है इसका पर्पज है कि आपने एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक 10 फुट के गैप पर लगा दिया, एक 15 फुट के गैप पर लगा दिया, सभी को उतना ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एयर चाहिए, पानी चाहिए, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। जी। तो जो हम जंगल क्रिएट करते हैं, हम एक फैमिली क्रिएट कर देते हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। उसमें एक पडल भी होगा, उसमें स्पेसिंग भी होगी, मिट्टी को हम पंचगव्य या जीवन अमृत से ठीक भी करेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाएंगे। तो जो जंगल बनता है वो जमीन के ऊपर नहीं बनता। साइंस ये कहती है, पर्टिकुलर वृक्ष आयुर्वेद और आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है जंगल जमीन के नीचे बनता है। रूट्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं, रूट्स आपस में न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करते हैं। जब वो एक तरह से रूट बन जाती है, नीचे जंगल बन जाता है, तो ऊपर सर्वाइवल 100% हो जाता है। दैट इज व्हाई यू रूट you water the root of the plant, not otherwise. पेड़ में क्या फर्क है, हमारा हेड ऊपर है, तो इसलिए आपको बचपन में मदर ने बोला होगा अखरोट खा लो, दिमाग चलना चाहिए। हम प्लांट के पत्तों को पानी नहीं देते, हम उसकी रूट को देते हैं, क्योंकि वो नीचे है, उसका ब्रेन नीचे है। तो जो भी चीज बनती है वो जमीन के नीचे बनती है। तो जैसे घर में मामा मम्मी, घर में सॉरी पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई बच्चे होते हैं, उसी तरह एक जंगल में क्रीपर, क्लाइंबर, रूट्स, श्रब्स, हर्ब्स, मिडिल लेवल प्लांट, कैनोपी ट्री, ये सारे बनाते हैं। तो हम एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री प्लांट बनाते हैं। साइंस क्या कहती है, मान लीजिए आपने प्लांटेशन कर दिया, यहाँ सारे नीम की प्लांटेशन कर दी, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल नीम को पोटैश चाहिए, तो दे विल compete with each other for potassium in the soil, राइट। हम क्या करते हैं, नीम के अगेंस्ट बरगद लगा दिया, बरगद अगेंस्ट आम लगा दिया, आम के अगेंस्ट अर्जुना, अर्जुन अगेंस्ट बेहड़ा, तो वो एक दूसरे को पूरक बन के एक दूसरे को एक्स्ट्रा सप्लाई करते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो उससे बहुत जल्दी जंगल डेवलप हो जाता है। सर्वाइवल उनका 99% तक रहता है, जब तक कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये एक टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है। वी हैव बीन फॉलोइंग इट, यू हैव seen our forests. Of course, sir. We have planted also forest together. So, अब जैसे सर इतने सालों से, आई थिंक 4 साल हो गए आपको इस चीज में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जिसको कह सकते हैं, उसमें आते हुए लाखों प्लांट्स, लाखों सैपलिंग्स आप अभी तक लगा चुके हैं। कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट या कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम आपको याद है ड्यूरिंग दिस पीरियड जब आप ऐसे प्लांटेशन कर रहे हो, कुछ बहुत मेमोरेबल सा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, इसमें बहुत बार आई हैव सीन, एक लेडी आई, तो जब हम प्लांट लगा रहे थे शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने एक पीपल निकाला था, तो मुझे अभी तक उसकी गिल्ट है, तो आज हम 10 पीपल लगा रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी टचिंग पॉइंट। और दूसरा क्या है कि जब भी हम प्लांट्स लगाते हैं या जंगल लगाते हैं तो हम बच्चों को जरूर बुलाते हैं जी। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मदर और बच्चों में झगड़ा हो गया है, बच्चे कह रहे हैं हमें वापस नहीं जाना, क्योंकि आपने उनको कभी एक्सपोजर नहीं दिया। जब वो करना शुरू हो गए तो आप उनको हटा रहे हो। तो दिस इज द बेस्ट गेम फॉर देम एज अ गेम, एज अ हॉबी। और थर्ड, जैसे हमने एक
ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल भी चलाते हैं। तो हमें एक कॉल आई कि सर आप हमारे घर में इससे झगड़ा हो गया है। तो मैंने कहा इससे हमारा क्या लिंक हुआ? तो कहते जी मेरे दादाजी एक आम का पेड़ लगा गए थे 15-20 साल पहले, तो वो मेरे भाई के तरफ चला गया, तो आप कैसे भी करके इसको हमारी तरफ अपरूट करके रीरूट कर दो। दैट वाज आल्सो वेरी टचिंग काइंड ऑफ थिंग। That's sweet. That's really sweet. But जैसे uproot करके reroot करना, is that possible? छोटे लेवल पर तो बहुत इजीली होता है। Okay. हम पीपल को भी निकाल कर उसको सैपलिंग वगैरह में वो करते हैं, अदरवाइज लोगों की दीवारें खराब हो जाती हैं। बड़े लेवल को करना भी ना हमारे पास टेक्निक क्या कहते हैं मशीनरी है, पर इट इज पॉसिबल। Like जैसे जैसे आम का पेड़, जैसे आपने बोला आम के पेड़ तो ह्यूज होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, बट फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली इट इज पॉसिबल। राइट। एंड सर अभी आपने ट्री हॉस्पिटल ट्री एम्बुलेंस का मेंशन किया था, हमने एक स्टोरी भी की थी इस पे पहले, मुझे याद है। तो बहुत यूनिक है ट्री एम्बुलेंस बनाना, ट्री हॉस्पिटल बनाना। ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे इसका प्रोसेस हुआ, ये इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। जैसे भक्ति जी आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा, तो यू हैव टेकन ईदर वेज फूड और नॉन वेज फूड। तो जो वेजिटेरियन फूड है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? प्लेनेट। आई हैव टेकन अ पार्ट ऑफ मे बी एटॉमिक पार्ट ऑफ planet inside me, right? And I am what I have eaten. तो I am nothing but extension of the planet. Yes sir. ठीक है। यदि उस चीज में, उस फूड में जो मैंने लिया, यदि वही अनहेल्दी होगा तो मेरी हेल्थ होना संभव नहीं है। Definitely. जैसे हमारे में भी आयुर्वेदा बोलता है वात पित्त और कफ होती है, एग्जैक्टली प्लांट्स में भी वात पित्त और कफ प्रॉब्लम होती है। जैसे हमें इमोशंस चाहिए होती हैं, इनको भी इमोशंस चाहिए होती हैं। बड़ी बार आपने देखा होगा कि किसी हमारे बहुत कॉमन रहता है कि फ्रूट नहीं आते प्लांट्स पर, तो उसका एक सिंपल टेक्निक है कि आप उसके प्लांट की जड़ में हिंग दबा दीजिए। अच्छा। तो हिंग से क्या होता है, आपको बचपन में मदर भी पेट पर हिंग लगाती थी, तो वात रोग दूर हो जाता है। तो प्लांट्स को वात रोग होता है, उससे फ्रूटिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग खुशी में ट्री गार्ड लगा देते हैं। प्लांट 20 साल का हो गया पर ट्री गार्ड उसको जकड़ा हुआ है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। कैन आई ग्रो और इवोल्व इफ आई एम एनकेज्ड और जेल्ड और एनकैप्चर्ड? तो वो बहुत बेसिक चीज है, पर ओनली ट्रबल इज कि हमें इसके बारे में सेंसिटाइज होना है। ये प्लांट्स आर आल्सो सोल्स, और हमारे शास्त्रों में तो इनको सोल ही माना गया कि व्हाट आई एम इज व्हाट ट्री इज। तो एटलीस्ट यदि ये सेंसिटाइज हो जाए, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्री एंड प्लांट हॉस्पिटल शुरू किया। जी। एंड इतनी इंफॉर्मेशन, जैसे आपने बताया कि हींग डाल दो तो फ्रूटिफिकेशन हो जाएगा, इतनी इंफॉर्मेशन, बीइंग एन IRS ऑफिसर, you're also in the job and everything, and then इतना सारा इंफॉर्मेशन इस चीज को लेके, ये सब कैसे है सर? देखिए हमें 10 साल के आसपास हो गए, आपने 4 साल बोला, एक्चुअली 10 साल के आसपास हो गए। और कुछ मेरे संस्कार मेरे दादाजी ने मुझे तुलसी का पौधा कैसे उगाना है, और आप देखो कि ये शाश्वत चीजें हैं कि 5 चीजें होनी, पंच तत्व होना, और अल्टीमेटली हम लोग भी इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो ये हमारे संस्कारों का पार्ट है, इंडियन कल्चर का पार्ट है। तो इसको समझना एकदम से कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 460 के आसपास जंगल लगा चुके हैं। तो अवर मेथड इज कि जो प्रैक्टिकल किया उसको थेराइज किया जाए। उस पर हमने बुक भी लिखी है, गिफ्ट लंग्स टू फ्यूचर जनरेशन। उसका मेन पर्पस यही है कि जो भी हमने प्रैक्टिकल चीजें ली उसको हम थेराइज कर रहे हैं अभी। ठीक है सर। एंड नाउ मूविंग ऑन, प्लांटेशन की बात हो गई, सीड बॉल्स पे आते हैं। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीड बॉल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड आपने इतने सारे सीड बॉल्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए, स्कूल्स में भी किए हैं, अदरवाइज भी किए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में? देखिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स नीड 3 थिंग्स टू ग्रो: सॉइल, न्यूट्रिएंट्स एंड सीड। राइट। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सॉइल लेते हैं, क्ले वाली सॉइल, थोड़ी चिकनी मिट्टी होनी चाहिए तालाब वाली, उसमें सीड डालते हैं और कोकोपीट या ड्राई कोडंग डालते हैं, उसका एक गोला बना देते हैं। वेयर एवर वी थ्रो दे ग्रो। अभी जैसे हमारे घर में हमने कोई 10-12 हजार सीड बल पड़े हुए हैं, तो बारिश का मौसम हुआ, अंदर पड़े उससे स्प्राउटिंग होनी शुरू हो गई।
तो यू डू नॉट नीड नेचर टिंकरिंग विद द नेचर, सिर्फ आप नेचर को लेट इट प्ले, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स टू ग्रो इवोल्व। Yeah. हमसे पहले जब हम ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड में नहीं थे तो देयर वर मोर प्लांट्स देन व्हेन वी एग्जिस्टेड। Yeah. तो इसका मतलब हो गया उन प्लांट को किसने लगाया? एग्जिस्टेंस नेचर हैज इट्स ओन कोर्स, हमें सिर्फ उसको इंटरफेरेंस या इंडल्जेंस नहीं करनी। तो ये दिस इज वन ऑफ द सिंपल टेक्निक्स, सीड wrapped in clay with some nutrients and we make them dry। अभी हमने काफी स्कूलों में या बिन फॉलोइंग की काफी स्कूलों के बच्चों को ये सिखाते हैं। तो देन वी थ्रो, तो जहां भी जाते हैं वहां वो ग्रो हो जाते हैं। तो बारिश के दिनों में उसका सक्सेस रेट है वो 85-90% तक चला जाता है। बट अदर वे आल्सो सीड नेवर डाई। सपोज समबडी buries you like buries you, Yeah. they forget that you are a seed। Yeah. Seed will grow today tomorrow। Yeah, that's absolutely right, sir. And not just you, आपने अपनी फैमिली को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है। Your sons, your wife, everybody is involved in environmental conservation। तो आपसे ये मोटिवेशन उनकी तरफ कैसे ट्रांसफर हुई? जो संस्कार है मेरे दादा ने मुझे दिए। हाँ जी। इट इज ऑलवेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स आर ऑलवेज कंटेजियस। तो दे माय फिलॉसफी ऑफ पेरेंटिंग इज no child learns what you tell them to learn or not to learn। they are the best monkeys in the world। Yeah. they are the best mimics of the world or observer of the world। Yeah. तो आपने जो फैमिली में माहौल लेकर आए उन्होंने पिक 1 मिनट में कर लेते हैं। सो दे आर द बेस्ट ऑब्जर्वर। दे लर्न बाय ऑब्जर्विंग, नॉट बाय व्हाट यू टेल देम ये कर ले वो कर ले। तो इट हैज बिकम वेरी नेचुरल फॉर देम टू फॉलो दिस कोर्स। Absolutely right, sir. And इतने सालों से जैसे आप environmental conservation में, I'm sure कुछ तो challenges कभी आपने face किए होंगे। तो आपको एक ऐसा कुछ particular challenge याद है जो आपने face किया हो, बहुत problematic रहा हो, लेकिन फिर somehow you just overcame it? देखिए challenges are, I understand, is always a condition for mind। Yeah. Right? तो आपके internal mind के challenges होते हैं। I never think, I think that instead of challenge, the word should be opportunity। I have opportunity, उस पर क्या react करता हूँ, तो my mind is strong enough कि मैं उसको proper react करता हूँ। मुझे challenge somehow, I don't think there is any challenge in the world। That's great, sir. So with that, we come to the end of the first part of our conversation. And जिस तरह से, like we could see, sir is also campaigning environmental conservation, not just on a professional level, but also on a personal level. Sir, एक बात मुझे बताइए, आपके हिसाब से एक plant और एक human being में क्या difference है? देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग आर एंटायरली सेम। Okay. हमारा जो बर्थ हुआ प्लांट से हुआ, राइट? अभी आप यदि साइंस की एवोल्यूशन पढ़िए, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़िए, इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्लांट्स को हमारे इंसेस्टर माना गया। जी। पहले प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए, बर्ड्स आए, एम्फीबियस आए, मंकीज आए, हम ह्यूमन बीइंग बने। प्लांट का जो ब्रेन है वो नीचे है, हमारा ब्रेन ऊपर है। प्लांट की ब्रांचेस ऊपर है, हमारी ब्रांचेस नीचे हैं। जी। यदि आपको प्लांट को ग्रो करना है तो उसकी ब्रांचेस को ग्रो, उसकी जो बेस है, रूट को ग्रो करिए। हमारी भी यदि आपको ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन करना है तो आप ब्रेन ग्रो करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। हमें ये मानना पड़ेगा, मानना क्या, जो साइंस कहती है, वी आर ओनली, ह्यूमन बीइंग आर ओनली 0.0005% of the world, right, of the planet, right, rest all is plant। we are 7 billion, they are 300 billions, of course, yeah, right? Now when we will die, how we will reincarnate, जो हमारा पुनर्जन्म होगा, जैसे हम हमारे जीवन में जो हमारी बॉडी के अंदर ही जीवन और मृत्यु की एलिमेंट्स है। when we will be merged in river, ashes हमारी मर्ज हो जाएंगी, तो वहीं से वो जो कण है मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से वो प्लांट में जाएगा, फूड प्लांट को बर्ड खाएगा, बर्ड एक्सक्रीट करेगा, उसके बाद वो मिट्टी में जाएगा, उसे कनक या क्या कहते हैं धान बनेगी, उसको ह्यूमन खाएगा, देन वी विल रीइनकार्नेट। तो दैट इज हाउ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर सेज हाउ वी इनकारनेट। दैट इज व्हाई वी रिवर सो मच प्लांट्स एंड ट्रीज। अभी भी आप हमारे इंडियन ट्रेडिशन में आप प्लांट को काट नहीं सकते। एक श्लोक है जिसमें ये बोला गया है कि 10 कुओं के बराबर एक
बावली, 10 बावली के बराबर एक लेक, 10 लेक के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़। अच्छा। तो इतनी महत्वता दी गई है। जी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। देयर इज नो डिफरेंस। व्हाट इज द कांस्टेंट फैक्टर, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन प्लांट एंड Plants and ट्रीज? trees. अभी अगला आ गया व्हाट इज पंचवटी। जी। देखिए हमारी ट्रेडिशन में पंचवटी का बहुत महत्व है। ये पांचों पेड़, पंचवट 5 पेड़ हैं। ये इंडिया के ओरिजिनल नेटिव एंशिएंट ट्रीज हैं, इनको सैक्रेड ट्रीज भी कहा जाता है। ज्ञात होगा कि रामायण में पंचवटी में भगवान राम ने अपना टाइम व्यतीत किया। जी। इसमें नोट में बिल लगता है। ओके। बिल का मतलब लक्ष्मी माता का उद्गम माना जाता है और भगवान शिव को चढ़ता है। और आयुर्वेदा में पेट के लिए इससे बढ़िया फल नहीं है। अच्छा। साउथ में आंवला, आंबल, जो भी खाता है उसको कोई मल नहीं रहता। एक्सक्रीशन, आपकी स्वेट और यूरिन, आपका बिल्कुल कोई भी मल नहीं रहेगा। तो जो हमारे मंदिर हैं उनकी शेप भी आंवले की होती है। जी। और विटामिन सी का सबसे भरपूर स्रोत आंवला है। जी। तो कोरोना में लोगों ने काफी ज्यादा आंवला खाया। जी। हाँ। साउथ ईस्ट में आ गया अशोका। अशोक जो लगाता है उसको शोक नहीं होता। तो जैसे सीता माता को शोक वाटिका में रखा गया, तो ये इतना अच्छा है कि आप लगाओ कि ऐसा माना जाता है कि इसको लगाने से आपको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। फिर ईस्ट में आ गया अक्षय, जी। जिसको पीपल का पेड़ कहते हैं, जिसको गीता में अक्षय का अश्वत्था कहा गया है। और ये पेड़ ऐसा है कि कहीं भी पानी ढूंढ लेता है। पीपल को उगाने का सिंपल तरीका है, पीपल का बूटा लगाओ और उसमें पत्थर रख दो, उतनी स्पीड से बढ़ेगा, तभी ये दीवारों उसमें निकलता है। हाँ। और आपने देखा होगा कि ये कहीं भी उगाता है, किसी भी दीवार में, थोड़ी सी भी सूखी जगह भी हो वहां निकल आता है। हाँ। उसका कारण क्या है कि जो काले जो कीड़े होते हैं वो जहां भी एक्सक्रीट करते हैं पीपल वहां उगता है, जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है। जी। और पांचवा जो इस तरफ है वो बरगद, बनियन या अक्षय कहते हैं। ये कभी भी मरता नहीं, इसकी ब्रांचेस से इसकी रूट्स निकलती है। तो ये पंचवट है कि आपने यदि इसको 5 मीटर के डिस्टेंस पर लगा दिया तो 10-12 सालों में पूरे का पूरा जंगल क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैंने एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया कि जैसे मैं देखता हूँ कि मुझे सुबह कम से कम 150-160 के आसपास गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं। हर एक बंदा कुछ ना कुछ देना चाहता है। तो मैंने एक दिन पूरी लिस्ट बनाई और उन जिनका भी मैसेज आता है उनको बाय नेम एक आंसर भेजा, एक मैसेज भेजा, लाइक शरद जी कैन यू फेवर मी, आप ये 5 पेड़ लगा के इनकी सेल्फी बनाकर मुझे भेज दीजिए। और इट हैज बिकम अ टोटल कैंपेन। अभी मेरे ख्याल 300-350 बंदे तो उसको लगा चुके हैं और मुझे फोटो भी भेज चुके हैं। तो हम उनको अपलोड कर देते हैं जी। अपने फेसबुक और इंस्टा पर। तो दीज आर सिंपल ट्रीज ऑफ इंडिया जिसको हम भूल गए। इंस्टेड ऑफ एस्थेटिक और फॉरेन और इम्पोर्टेड ट्रीज, दीज आर द बेसिक ट्रीज ऑफ इंडिया जो हम लगा रहे हैं। और ऐसा बताया गया है हमारे ट्रेडिशन में कि यदि आप पंचवटी लगाते हो तो आपकी 5 जनरेशन तक आपकी prosperity रहती है। जी। So with that we come to the end of the first part of our conversation. And जिस तरह से like we could see sir is also campaigning environmental conservation not just on a professional level but also on a personal level through his WhatsApp messages. And really thank you so much for coming here.